आकाशवाणी चंडीगढ़ तो पेश है समाचार दर्शन। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, मैं पिछले साल परीक्षा पे चर्चा दिल्ली गया सीगा। उधर साडी प्राइम मिनिस्टर साडे श्री नरेंद्र मोदी नाल गल हुई सीगी। ਉਹ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਐਨਡੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੀक्षा पे चर्चा। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਂਗੂ ਇੰਨੇ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੂਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਲ ਠਾਕੁਰ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मैं पिछले साल परीक्षा पे चर्चा च सिलेक्ट होया सी तो मैंने बहुत अच्छा लग गया। मैं उत्थे गया और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री ने हमें पढ़ाया, हमें बताया गया, मेरे को बहुत खुशी मिली कि मैं पढ़ा। और उनके जो विचार थे हम एग्ज़ाम के, जो उन्होंने फियर बताए कि हमें कैसे बचना चाहिए, मतलब कैसे हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इस साल भी 14 मार्च ਨੂੰ ऑनलाइन आ गया तो मैं बहुत खुश हाँ। मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिया ਉਹਦਾ। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा प्रोग्राम शुरू किया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि वो अपने जो बच्चे एग्ज़ाम्स में जब फियर आ जाता है, डरते हैं वो एग्ज़ाम्स देने से, कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अगर वो सुने, उनकी टॉक भी ऑनलाइन भी सुने तो मतलब एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है उन जो वो बता कैसे हमें उन एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर करना है। हर एक स्टेप उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया है और मैं उनकी तरह बनना चाहूँगा और भारत का नाम रोशन करना चाहूँगा। उनकी ये भी सबसे बड़ी बात है कि फेलियर को एक सक्सेस की तरफ लेके चलो, एक उसे एक बूंद की तरह लो, ना कि फेलियर को नीचे करो, डिप्रेशन की तरह लेके चलो। उन्होंने बताया कि अपने फेलियर को ही पहचानो, जैसे हम फेल हो रहे हैं हमें उसको उसकी कमज़ोरी पकड़नी चाहिए और हमें उसी को रिजॉल्व करना चाहिए और उसी में ही हमें आगे बढ़ना चाहिए फेलियर से। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲੈਣ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਯੂਥ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗਰੋਥ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈ ਕੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੀਤਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। मेरा बेटा पिछले साल परीक्षा में चर्चा में गया हुआ था। वो वहाँ से आकर बहुत ही खुश हुआ, बहुत ही हर्षित हुआ और कहने लगा, मम्मा इस तरीके से प्रधानमंत्री जी बार बार बच्चों को बुलाते रहे परीक्षा में चर्चा में, इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है और उनके अंदर जो टेंशन होती है, जो वो सुसाइड करने को सोचते हैं, इसमें बच्चों को काफ़ी रिलीफ
फील हुआ है। इस साल जो 14 मार्च को परीक्षा में चर्चा आ रही है उसमें भी मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया है। मुझे ये जानकर बहुत ही खुशी हुई और मेरे बच्चे का बड़ा ही उत्साहवर्धन हुआ। मुझे खुशी हुई कि मोदी जी हमारे देश के बारे में सोचते हैं, हमारे युवा वर्ग के बारे में सोचते हैं, हमारे बच्चों के बारे में सोचते हैं, छोटी छोटी सी समस्याएं बच्चों की सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। आप पहला प्रधानमंत्री है जो बच्चों के बारे में इस तरीके से सोचा और बच्चों से बात की, बच्चों से हिला मिला, बच्चों से मिला। ऐसा आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो इस तरीके से बच्चों के बारे में सोचा हो और बच्चों का जीवन उज्जवल हो। इससे बढ़ के और कुछ भी नहीं है। मोदी जी उसमें पूरी तरीके से लगे हुए हैं और पूरी तरीके से सक्षम हैं। पंचकूला तो 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਕਸ਼ਤ ਗਰਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मुझे पिछले वर्ष प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में आने का मौका मिला था। वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा मौका था। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणाजनक है। उन्होंने हमें बताया कि हमें हमेशा हार्ड वर्क करना चाहिए और कभी भी फेलियर से डरना नहीं चाहिए। हमें सक्सेस मिले या फेलियर, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा ना करके और टेंशन नहीं लेनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप से कम्पीट करना चाहिए। अगर हम अपने आप से कम्पीट करेंगे तो ही हम सच्ची में डेवलपमेंट हमारी हो सकती है। ਸਾਡੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਸ਼ਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨਿਧੀ ਸੂਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। मैंने अक्षित को पाया है कि 9th क्लास से मैं जैसे उसको पढ़ा रही हूँ, बहुत रिज़र्व नेचर का था, बहुत कम बोलता था, बट उसकी जो लिखने की पार्ट थी वो इतनी अच्छी थी कि वो सिलेक्ट हो गया। और सिलेक्ट हो जाने से उसके बाद में मैंने एक मेजर चेंज ये देखा कि जो बच्चा क्लास में बहुत सारा फ्रेंडली नहीं था, तो वो जो उसका एक नेचर था वो जो निकल के आया कि वो सबको कन्विंस करने लगा कि ऐसा लिखने से, और जो उसकी फ्रेंडलीनेस थी वो बढ़ गई और लोगों को कन्विंसिंग पार्ट, जहाँ वो बिल्कुल चुप रहता था वहाँ वो सब उनके साथ शेयर करने लग गया। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल जो मैं उसमें देख रही थी वो बिल्कुल बिल्कुल सराहनीय है। एंड इट इज़ ओनली एंड ओनली बिकॉज कि वहाँ पे वो वहाँ जाकर जो उसने अटेंड किया, बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो उसका था वो बहुत बहुत अच्छा रहा उसके कॉन्फिडेंस के लिए। ਅਕਸ਼ਿਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜया ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰੀक्षा पे चर्चा ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ काफ़ी उत्सुक ने। अत्यंत खुशी हो रही है इस बात को शेयर करते हुए कि हमारा बच्चा जो अक्षित है लास्ट ईयर परीक्षा पे चर्चा के लिए सेलेक्ट किया गया था। उसके जाने के कारण इस साल आपने भी जैसे बता दिया, पैंडेमिक है, बच्चे तो क्लास में आ नहीं रहे हैं, लेकिन जब परीक्षा की चर्चा के लिए सर्कुलर आया, क्लास टीचर ने बताया, लास्ट ईयर का एग्जाम्पल था, सो पूरे क्लास ने सब ने कहा कि हमने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। सो हमारी 100% पार्टिसिपेशन हो गई है इस बार, क्योंकि हर एक बच्चे का ये तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जो प्रधानमंत्री के सामने जाना या उनकी बातों को इन पर्सन सुनना। इसीलिए ये उनका सहपाठी गया था लास्ट ईयर, इसलिए हमें इस बार टीचर्स भी बताते हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए कोई भाषण नहीं देना पड़ा। हर बच्चा अपने आप ही मोटिवेटेड था और हर कोई बच्चा अक्षित से भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि आपने ऐसे क्या डिफरेंट लिखा, सो दैट उनकी भी चांस मिल सके, क्योंकि ये तो सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स को आता है। सो मुझे ये इस बात से बड़ी खुशी हुई है कि हमारे प्रधानमंत्री ने इतना अनूठा एक पहल लिया उससे, क्योंकि वो इतना व्यस्त होने के बावजूद वो बच्चों से बात करने के लिए समय निकालते हैं। इससे बच्चों को मनोबल इतना बढ़ता है और आगे ज़िंदगी में आगे चलने के लिए उनका एक शक्ति मिलती है। मैं इसके लिए उनको भी बहुत धन्यवाद करूँगी और मैं इस बार भी होप करूँगी कि मेरे कोई और बच्चा भी जरूर सेलेक्ट हो जाए। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, कोविड-19 वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हुआ है जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह है। जब सुबह हम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर आए तो हमने देखा कि कम से कम यहाँ पर 30-40 बुजुर्ग अपने रजिस्ट्रेशन का और बारी का इंतजार कर रहे थे। बिकॉज जैसे न्यूज़पेपर में आया कि आपकी एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन होकर वैक्सीन लग जाएगी, तो हमने यहाँ पर पहले से ही सेपरेट काउंटर बनाए हुए थे जिन लोगों को सेकेंड डोज लगनी है या जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगनी है। तो हमने फर्स्ट डोज के लिए एट द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करके और उनकी वैक्सीनेशन कराई। जिनको सेकंड डोज लगनी है उनकी फर्स्ट डोज की वेरिफिकेशन करके और उनको सेकंड डोज लगवा रहे हैं। आज कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है यहाँ पर। हमने रिजर्व में कोवैक्सीन भी रखी हुई है। जो लोग कोवैक्सीन के लिए विलिंग हैं उनको कोवैक्सीन लगा रहे हैं और जो कोविशील्ड के विलिंग हैं उनको कोविशील्ड लगा रहे हैं।
ਭਿਵਾਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਮੀਨਾ ਤੇ ਸਵਿਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। मेरा नाम मीना है। मैंने पहली वैक्सीन भी लगवा ली थी और अब भी लगवा ली है दूसरी भी। मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। जी, मेरा नाम सविता है। मैं एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ और मैंने जो पहले चरण का टीका लगवा था उससे थोड़ा फीवर थोड़ा हल्का फुल्का सा हुआ था। 1 महीना हो चुका है, मैंने दूसरी वैक्सीन भी ले ली है। अच्छा सा लग रहा है, मतलब तो और कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो सभी से यही कहेंगे कि औरों को भी यही शिक्षा देंगे कि इंजेक्शन ठीक है, लगवा लेना ही अच्छा है, कोरोना मुक्त भारत हो जाएगा। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟੇਟ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨਰਿੰਦਰ आहूजा ने दस्या, मुझे पहली डोज जो पिछले महीने लगी थी उसको लगने के बाद भी कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव मेरे शरीर पर आप देख सकते हैं कि मैं लगातार अपनी ड्यूटी पर भी रहा और काम करता रहा, और आज सेकंड डोज लगने के बाद भी ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, सावधानीवश मैंने एक पैरास्टामोल की गोली डॉक्टर साहब के कहने पर अवश्य ले ली है। उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है जनरली। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दवाई भी और कड़ाई भी, हमें वैक्सीनेशन भी लेनी है और साथ ही साथ कोरोना के खिलाफ जंग को जीतने के लिए आवश्यक जैसा मास्क पहनेंगे, हाथ की सफाई रखेंगे और 2 गज की सामाजिक दूरी को बना करके रखेंगे। यदि हम ऐसा करने में सफल होंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय वैक्सीन्स का प्रयोग करते हुए भारत में कोरोना को हराने में सक्षम होंगे। और जब हम स्वयं अपनी वैक्सीन पर पूरा विश्वास जताएंगे तो निश्चित रूप से जो विश्व के बाकी राष्ट्र हैं जो हमसे कोरोना की वैक्सीन मांग रहे हैं उन्हें भी इससे लाभ होगा। इसके लिए आवश्यक है कि बतौर एक अच्छे नागरिक, और मेरे लिए तो विशेष रूप से क्योंकि मैं एक ड्रग रेगुलेटर हूँ, तो अपने ही द्वारा, अपने ही सेंटर के DCGI द्वारा अप्रूव की गई इस वैक्सीन पर मैं अपनी पूरी आस्था व्यक्त करते हुए इसकी दोनों डोज आज ले चुका हूँ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਰਤਿਕਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਧੀਮਾਨ।